this is ABP Live podcast. I'm Abi Lahiri. Joining me today in conversation is Rajesh Talwar with his brand new book, Harvard, Oxford and Cambridge. Cambridge और मतलब proper noun है तो थोड़ा बहुत pronunciation यहाँ वहाँ हो सकता है. This book is basically an explanation कि कैसे Indian education system compete करता है Western education system से and why does he think कि Indian education system will take the center stage after a decade or two. Welcome to the podcast. How are you? Thanks, Abir. Very good to be with you on this digital show. And I'm also happy to be part of this new technology, which is Podcasting. Yes, and which is probably going to develop more and more. True. नाम से कितना confusion होता है? We were talking about this. आपका नाम is a very iconic name as well. राजेश तलवार. You're right. In fact, some years ago, क्योंकि मैं तो UN में 20 साल से हूँ, and airports में मेरा बहुत आना जाना रहता था, and the immigration people would look at me and they would see my beard and they would ask themselves, is it the same person? Yes. And then they would look at the address, Noida. Oh bhai. Yeah. So I have actually a few things in common with Dr. Rajesh Talwar. एक तो he is a professional dentist. I'm also a professional in the sense I was a lawyer for many years before I joined the United Nations. Then secondly, he was living in Noida and I was living also in a defense sector. He was staying in Jalvayu Vihar, I'm staying in Arun Vihar. Okay. So that's something in common. And then he wrote a book on how to look after your teeth. So he also is an author. वाह. वो अलग बात है कि मेरी ज़्यादा किताबें हैं, तो ये एक कॉमन फीचर. सही बात है. बहुत बढ़िया. आप स्टार्ट करते हैं किताब के ऊपर. What exactly the book is all about? It is your experience towards the education system या फिर एक हॉकाई व्यू है कि कैसे एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट है? Well, actually, मेरी मनोकामना थी when I was a student at Delhi University that I should study overseas at some prestigious university. Okay. So I applied to many prestigious universities, but I did not get a scholarship till after many years. Okay. Then the scholarship I got was from the University of Nottingham. It was the British Evening Scholarship. That was the first year it had been introduced. Okay. And then after I joined the UN, because the UN is very keen for their staff to upgrade their skills, I got opportunities coincidentally to go to the three most highest rated universities in the world. So you could say that... In the capacity of a student? Hanji? In the capacity of a student? No, in the capacity of a UN staffer, UN staff member who is going to upgrade his training, upgrade his skills. So I went to Harvard, I went to Oxford, and I went to Cambridge. And I've studied in various other universities, which is, of course, Delhi University I studied at Hindu College, and then I studied at Campus Law Center. But aside from that, I studied Arabic at SOAS, London. Then I did a course in filmmaking at London Film Academy. So I did many courses. कितना कुछ कर रखा है. CLC, then filmmaking, then Arabic. वाह. तो but मुझे ये ख्याल आया कि many people can say कि भाई हम हार्वर्ड गए हैं, कुछ कह सकते हैं हम ऑक्सफोर्ड गए हैं, लेकिन शायद there are not so many people who've been to all three universities. And I know that young people want to learn about these universities. तो इस किताब के दो हिस्से हैं. The first section deals with my experiences in these three universities. Okay. So it compares Harvard, Oxford, Cambridge. What is special about Harvard? In which respects is it better than Cambridge and Oxford? Are Cambridge and Oxford better in some respect as compared to Harvard? So you get a kind of view in a very informal, chatty way. And then the second half deals with the subtitle of the book, which is the past, present and future of excellence in education. Okay. मतलब before we move into this कि क्या education different है, एक बहुत कॉमन सवाल जो कई बार YouTube में सर्च होता है, गूगल में सर्च होता है, और आप शायद परफेक्ट इंसान रहेंगे वो बताने के लिए, एक इंसान यूएन में नौकरी पाता कैसे है, कैसे ज्वाइन करता है कोई इंसान यूएन? Okay, well, that's an interesting question.
and also that is actually related to the brand recognition Okay. of a university. Because जब मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, यहीं दिल्ली में ब्रिटिश काउंसिल में इंटरव्यू था। यूएन का? नहीं, दैट वाज टू गो टू नॉटिंघम। अच्छा, ठीक है। तो नॉटिंघम में वेंट एज आफ्टर सम इयर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर, और स्कॉलरशिप मुझे इस वजह से मिली क्योंकि मैंने एक दो किताबें लिखी हुई थी ओके, जो मैंने अपनी सीवी के साथ डाल दिया था। ठीक है। तो इंटरव्यू में मैं गया तो एम्बेसडर जो चेक कर रहे थे इंटरव्यू, ही वाज होल्डिंग अप वन ऑफ माय बुक्स एंड ही लुक्ड एट द अदर इंडियन मेंबर्स ऑफ द पैनल एंड दे एक्चुअली सेड कि ओके, वी आर गिविंग यू द स्कॉलरशिप, डू यू वांट टू गो टू नॉटिंघम, यू वांट टू गो टू एक्सेटर, you want to go to London. But once I got the Nottingham, then I was in Geneva for a human rights professionals meeting. Okay. The university of Nottingham's qualification played a crucial role because मैं वहाँ पे गया था इस कॉन्फ्रेंस के लिए। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स ने कहा, एनी ऑफ यू वुड लाइक टू वर्क फॉर द यूएन, वी आर हैविंग सम इंटरव्यूज एंड सम ऑफ यू कैन गेट सिलेक्टेड। ओके। सो और कोइंसिडेंटली नहीं, बट एक अमूमन एक बिल्कुल कॉमन लेमैन है इंडिया में, उसकी एस्पिरेशंस हैं कि वो जाके कभी यूएन के लिए काम करे। तो पहली बात, एक तो एकदम बहुत बेसिक तरीके से आप ये समझा दीजिए कि यूएन में काम जितने प्रोफेशनल्स करते हैं वो क्या करते हैं? क्या वो सिर्फ ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं या एक बड़ा नहीं, बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है। हाँ, वो क्या होता है और कैसे कोई एंटर कर सकता है? अगर कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से ना भी पढ़ा हो लेकिन कन्विक्शन है कि चलिए कुछ अच्छा करना है, क्या वो जा सकता है? हाँ, नहीं, मैं उस आपकी बात पे आता हूँ, बट बस ये थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि जब मेरे को पहले दी नेशंस में इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो द इंटरव्यूअर वाज वाचिंग मी आंसर हर क्वेश्चंस, बट आई वाज आल्सो वाचिंग हर। ओके। वाचिंग हर कि वो कैसे मुझे असेस कर रही है। तो एक चीज़ मैंने देखी कि वो सब कुछ सीवी वीवी देख के शी वाज स्टिल नॉट कन्विंस्ड, बट व्हेन शी सॉ नॉटिंघम, her entire attitude changed, and then suddenly she was keen to hire me. तो हाँ, तो ये एक यूनिवर्सिटी की ब्रांड रिकग्निशन की पावर है, एक सील की बहुत वैल्यू है। हाँ। सो आप इसको नेगेटिवली भी देख सकते हैं कि भाई एक प्रेजुडिस है कि क्यों इंडियन इंस्टीट्यूशंस को क्यों नहीं प्रेफरेंस क्यों नहीं दिया जा रहा, या यू कैन जस्ट से कि भाई दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड कि कुछ यूनिवर्सिटी, अगर आपके सीवी में हार्वर्ड लिखा हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली कई चीज़ों में ऊपर चले जाते हो। ठीक है। तो सो ये एक फैक्टर है। बाकी यूएन बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, उसमें जैसे आप मीडिया में हैं, you could conceivably join the UN because we have a very strong communications unit. Okay. उसमें बहुत सारे videographers, filmmakers, documentary makers, they join in. Okay. Then of course they are engineers, they are doctors, they are supply chain experts. UN इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है कि जॉब्स तो सबके लिए हैं। और क्या करते हैं? बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है। मैं तो पीस कीपिंग में था। ओके। सो यूएन का एक पीस कीपिंग फंक्शन है, वी हैड मोर देन 20 पीस कीपिंग। तो जो वॉर जोन्स में पीस एफर्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम द यूएन इज पुटिंग देम फॉरवर्ड। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई वाज इन अफगानिस्तान, इन सोमालिया, लाइबेरिया, ईस्ट तिमोर। तो वहाँ पे जो वॉरिंग फैक्शंस हैं, The UN is a kind of chief negotiator. उनसे नेगोशिएट करना है, बातें करनी है। ओके। और कैसे कोई ज्वाइन कर सकता है यूएन? यूएन का एक सबसे आसान तरीका है unv.org, दैट इज UN volunteers. ओके। तो वॉलंटियर से आप ये मत समझे कि पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, पैसा नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा पैसा, और डॉलर्स में मिलेगा बाकायदा। जी। तो ये जरूर है कि आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है। और नौकरी नहीं है वो, तो आप अपने स्वाभिमान के लिए, अपने एस्पिरेशंस के लिए ज्वाइन करते हैं। बढ़िया। अब आते हैं इस पे, हाउ एग्जैक्टली इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट? अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन हैज बीन डन अराउंड इट, बट कोई कभी भी एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देता
लोग बोलते हैं अरे वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पे फोकस होता है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ाई जाती है। एक ये प्रिजम्पशन है, मतलब प्रिजम्पशन है या रियलिटी, वो आप मुझे बताइएगा। एक ये भी एस्पेक्ट है कि भाई साहब वहाँ पे आप अगर यहाँ जैसे मगिंग कर लेते हैं, आप कुछ भी रट वट के आप एग्ज़ाम दे दीजिए, बढ़िया आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, वहाँ वो सब चीज़ें वर्क नहीं करती। इसके अलावा भी कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं क्या इन दो एजुकेशन सिस्टम्स में, मतलब हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, एंड अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम्स की बात करूँ तो? मैं समझूंगा कि एक तो एटीट्यूडल फ़र्क है, जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है। हमारे यहाँ क्या है कि वो टीचर को गुरु मानते हैं और टीचर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और टीचर्स जो हैं वो इतने फ्रेंडली नहीं होते जितना होना चाहिए हमारे यहाँ। तो मसलन जब मैं हार्वर्ड गया था तो एक मेरे कलीग थे, उनको हम सबको कहा था कि भाई आप छोटा सा एक ऐसे लिखिए फलानी टॉपिक पे। तो जो मेरे कलीग थे उन्होंने वही लिखा जो प्रोफेसर के व्यूज़ थे। तो प्रोफेसर आए उनके पास, उन्होंने कहा भाई मुझे खुद अपने व्यूज़ मालूम है, मैं आपके व्यूज़ जानना चाहता हूँ। तो आप चाटुकारिता नहीं चल पाएगी वहाँ पे। तो वो चाहते हैं कि आप उनको, अब इंडिया में जब मैं बड़ा हो रहा था, अब तो सिचुएशन चेंज हो गई है, जब आप टीचर को चैलेंज करते थे तो टीचर जो है अक्सर पर्सनली थ्रेटन फील करता था, तो कि ये कैसे मुझे चैलेंज कर रहा है। और वहाँ इसका विपरीत है, अगर आप चैलेंज करेंगे तो वो बहुत खुश होगा। तो आप चैलेंज नहीं करेंगे तो उनको लगेगा कि ये क्लास पार्टिसिपेशन नहीं हो रही। तो सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, और सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि हम लोग हमेशा ऐसे नहीं थे। वी हैव डिग्रेडेड कि ये जो खुशामदी है टीचर्स को खुश रखने के लिए, टू सॉर्ट ऑफ गिव देयर व्यूज़। तो जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, इंडिपेंडेंट और क्रिटिकल थिंकिंग है, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और हमारी जो हिस्ट्री है ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटीज़, नालंदा, तक्षशिला, उस समय ये क्रिटिकल थिंकिंग थी और डिबेट्स होते थे जहाँ पे लोग एक दूसरे को चैलेंज करते थे। तो बट मे बी बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म, तो कॉलोनियलिज्म में फिर कॉलोनियल मास्टर आ गया, हम उसको ही ऊपर समझने लगे और हम दबते रह गए। बिल्कुल। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। कैसे चेंज किया जा सकता है इसको? पहले तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे हम प्राइमरी स्कूल्स में 100% लिटरेसी क्रिएट कर सकते हैं। तो मसलन मैं इस किताब में एग्जांपल देता हूँ कि हमारे घर में एक मेड है करुणा, वो जब आई थी यहाँ हमारे यहाँ काम करने 15-20 साल पहले, तो उसकी बहुत अच्छी हालत नहीं थी। नाउ उसने कुछ लोन मांगा कि मुझे स्मार्टफ़ोन ख़रीदना है अपने बेटे के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, पर किस लिए ख़रीद रहा है? तो उसने कहा कि भाई मैं चाहती हूँ वो अच्छा पढ़ लिख ले, और आजकल एडटेक के ऐप्स हैं तो वो कुछ एडटेक ऐप्स एक्सेस करना चाहता। तो अब तो एक सुझाव इस किताब में ये भी है कि हमारे पास एड टेक्नोलॉजी है, लेकिन गवर्नमेंट और प्राइवेट जो एडटेक सेक्टर है उसमें अच्छी तरह से एक पार्टनरशिप नहीं बन रही। तो आप उनका जीएसटी माफ़ करा दीजिए, उनको आप स्पेस दे दीजिए, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड देम विद स्पेस, और उसके एवज में आप कहिए कि भाई इनको they have to provide something for people who cannot afford it. और प्लस समवेयर डाउन द लाइन इंडियंस की एक मेंटालिटी ये भी ना कि टीचर्स के साथ, जैसे एज यू सेड, जो अच्छाई भी है बुराई भी है, टीचर के साथ एक बहुत पर्सनल टच होता है। एक बहुत पर्सनल टच होता है, मतलब गुरु को सबसे पूजा जाता है हमारे। बिल्कुल। मुझे लगता है एडटेक पे बस ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, या एक बहुत बड़ा ब्रिज है, गैप है बीच में, जिसको ब्रिज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन बनना चाहिए वो कभी एडटेक से बन नहीं पा रहा है। गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है चीज़ें चेंज हो, अब इसमें भी इनोवेशंस आ रहे हैं, डिजिटाइज चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन इनोवेशंस तो अभी भी स्कोप है। अगर वो हो गया तो आई गेस वो जो गैप है वो भी ब्रिज हो सकता है। टीचर और स्टूडेंट का जो कनेक्ट है, जो एक जूम कॉल से अच्छे से पूरा नहीं हो पा रहा है, वो शायद अच्छे से हो पाएगा। बात सही है आपकी कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि जो एक
फिजिकल यूनिवर्सिटी के जो फायदे हैं वो ऑनलाइन के नहीं है। वो ऑनलाइन के मसलन नॉट ओनली विद द टीचर जो आपका रिलेशन बनता है इंडिया में और हब सब दुनिया में, बट ऑल्सो विद योर कलीग्स जो आप कैंटीन में गपशप करते हैं, चाय पीते हुए जिंदगी के बारे में सीखते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मतलब वो पूरे स्टूडेंट लाइफ का वो एक बहुत फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पढ़ाई सिर्फ क्लास में नहीं होती, क्लास के बाहर कॉलेज कैंटीन में, ऑडिटोरियम में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी होती है। वो शायद एडटेक में एक थोड़ी हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक फ्यूजन रहेगा। फ्यूजन है, बिल्कुल परफेक्ट वर्ड आपने यूज किया। एक फ्यूजन होना चाहिए, एक फ्यूजन होना चाहिए दोनों का। तो और आई गेस अब तो IIMs IITs ये एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हैं। अब ओपन बुक एग्जाम्स होने लगे हैं जहाँ पे लोगों को बोला यार आपको जो लिखना है लिखो, 24 घंटे एग्जाम है, आपको आपके एनालिटिकल ब्रेन पे टेस्ट किया जाएगा रादर देन जस्ट लाइक मगिंग अप थिंग्स। बट टेक्नोलॉजी के आप देखें फ़ायदे जो हैं, अब लोग कहते हैं कि जैसे स्कूलिंग है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की स्कूलिंग इज़ बेटर, द टीचर्स आर बेटर, गवर्नमेंट स्कूल्स आर नॉट सो गुड। लेकिन जो आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, मैं कुछ 3 साल पहले बीजिंग गया था, तो 3 साल पहले भी एक टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी, तो मैं फ़ोन में इंग्लिश में बोला, टैक्सी के ड्राइवर के लिए फ़ोन ने ट्रांसलेट किया चाइनीज़ में। अब ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। मेरे एक मित्र हैं, वो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, एशरिज कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में। तो वो जब उनके जर्मन स्टूडेंट्स हैं या जर्मन क्लाइंट्स हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही एक एप्लीकेशन है जो साथ साथ नीचे रियल टाइम में ट्रांसलेट सबटाइटल्स आ जाता है, देता है। वेरी कूल। तो अब ऐसे आप इसका देखें एग्जांपल कि हमारे यहाँ इतने 26 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन एक लैंग्वेज में अच्छा एक लेक्चर डिलीवर हो रहा है। अब ये नहीं आप कह सकते कि ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में चलेगा, उसको नॉट ओनली कैन इट बी ट्रांसलेटेड, अब तो आपके पास ये भी ऑप्शंस हैं कि अगर आप इंग्लिश लेक्चर सुनना चाहते हैं, यू कैन लिसन टू इट इन एन ऑक्सफोर्ड एक्सेंट, इन अ कैम्ब्रिज एक्सेंट, इन अ BBC एक्सेंट, इन एन इंडियन एक्सेंट। और ज़माना इस तरह से आगे बढ़ रहा है कि हमारे यहाँ जो कई फिल्में बनी हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि भाई ये बैक ऑफिस बना हुआ है इंडिया, और इंडियंस को ट्रेन किया जा रहा है कि भाई हमारे क्लाइंट्स अमेरिकन हैं, आप अमेरिकन एक्सेंट में बोलिए। तो कल ये भी संभव है कि अमेरिकन सीखें कि इंडियन एक्सेंट में बोलना, कि भाई जब इकोनॉमिक पावर शिफ्ट करेगा एशिया को, बिल्कुल, या तो वो कहेंगे कि भाई इंडियंस आपके क्लाइंट्स हैं, ट्राई टू स्पीक इन एन इंडियन एक्सेंट। तो सो द फ्यूचर इज Can you fetch me a glass of water? से वो हो जाए Can you fetch me a glass of water? बढ़िया। कैसे रहे एक्सपीरियंसेस इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में? मतलब अगर थोड़ा इन डेप्थ जाएं, व्हाट काइंड ऑफ फंडामेंटल शिफ्ट हमें इंडियन एजुकेशन में लाना पड़ेगा ताकि हम इस लेवल पे compete कर सकें? देखिए, अगर आप कंपेयर करें जो हार्वर्ड का एडवांटेज है विज़ावी कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड, तो उससे एग्जांपल देके मैं, तो हार्वर्ड में जो प्रोफेसर्स हैं दे आर नॉट ओनली वेरी वेल क्वालिफाइड बट दे आर ऑल्सो एंटरटेनर्स। अच्छा, हाँ, तो अब देखिए आपका और मेरा इंटरव्यू चल रहा है और डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, लेकिन हमारी बातचीत हो सकता है बड़ी बोरिंग सही बात है, हो सकता है हमारी बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग हो और एकेडमिकली रिगरस भी हो, ये भी सही बात है। तो स्टूडेंट्स को एंगेज करना, उनका अटेंशन होल्ड करना, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज इस बात को समझते हैं। तो अमेरिका में नॉट ओनली हैव यू टू हैव वेरी गुड रिसर्च क्रेडेंशियल्स, यू मस्ट ऑल्सो बी एन एक्सीलेंट टीचर, और कई दफ़ा ये गुण अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एक बहुत ब्रिलियंट टीचर है लेकिन उसकी कोई रिसर्च आउटपुट नहीं है, या कोई बहुत बढ़िया रिसर्चर है और उसका कोई टीचिंग स्किल्स नहीं है। तो राइटर्स में भी आप देखते हैं कोई बहुत शानदार राइटर है लेकिन जब वो टीवी के सामने आते हैं इंटरव्यू देने तो बोल नहीं पाते हैं। सही और कुछ राइटर्स हैं वो इतना अच्छा नहीं लिखते लेकिन बम फोड़ देते हैं टीवी में आके, बिल्कुल। लेकिन और सच बात है, आप भी जब भी आप देखिए जितने भी टीचर्स हमारे भी स्कूल में कॉलेज में रहे होंगे, आई गेस सबसे ज़्यादा जो दिमाग पे छाप छोड़ के जाते हैं, जिनकी आपको सबसे ज़्यादा याद आती है, वो हमेशा दोस्तों के बीच में जब आप बात करते हैं याद रहता है कि वो एक टीचर थे जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजी तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल से समझाते थे, और शायद उनसे इसलिए
दिल का राब्ता और पढ़ाई का राब्ता दोनों ज़्यादा क्लोज था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे एक मित्र हैं, वो एक इंग्लिश यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। Okay. वो प्रोफेसर हैं ये नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में ही। पर वो लेक्चर देने अमेरिका जाते हैं एक हार्वर्ड प्रोफेसर की खातिर। अच्छा, हार्वर्ड प्रोफेसर ने किताब लिखी है, लेकिन वो कहता है मैं अपनी किताब की खुद प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं कर सकता जितना आप कर लेते हो। तो जो टीचिंग का स्किल है और जो रिसर्च का स्किल है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है एजुकेशन में। तो पर हमें ये नहीं करना चाहिए कि तो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ में एक ये प्रॉब्लम है कि वो रिसर्च को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड है। हाँ, ऑक्सफोर्ड में। ऑक्सफोर्ड की रिसर्च शायद हार्वर्ड से थोड़ा 10 कदम आगे, एक कदम आगे ही हो, लेकिन टीचिंग स्टाइल उतना है हमें। हाँ, टीचिंग स्टाइल इतना अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सालों तक रिसर्च पे तो फोकस किया ही नहीं और लोग परवाह ही नहीं करते थे। जब मैं पढ़ रहा था, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, पर वो प्रोफेसर आते थे और डिक्टेट करने लगते थे, वो भी कॉलेज लेवल पे। कितनी शर्म की बात है। और प्रोफेसर साहब ने खुद भी कुछ लिखा नहीं था। तो रिसर्च भी बहुत ज़रूरी है कि आप खास करके साइंसेस में कि आप यू आर इन टच विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन योर सब्जेक्ट, यू आर पब्लिशिंग। सो दोनों स्किल्स को हमें साथ साथ लेके हमारे यहाँ ऐसा नहीं लगता आपको कई बार कि टीचिंग बस एक जॉब बन के रह गई है? जो पहले टीचर की जो इज्जत थी, जो अहमियत थी, वो इसलिए थी क्योंकि उसका पैशन था पढ़ाना। अब कितने आपको मिलते होंगे ऑनेस्टली कि जो एक्चुअली पैशनेट है पढ़ाने के लिए? आई गेस जो होंगे वो अपनी रिसर्च में बहुत ज़्यादा घुसे होंगे और वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में होंगे। बट अगर आप ग्रास रूट लेवल पे देखो, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में मोस्टली सिर्फ इसलिए टीचिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको एक नौकरी चाहिए और कहीं नौकरी नहीं मिल रही इसलिए वो नौकरी कर रहे हैं, या फिर किसी एक सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन में बैठे होंगे, अभी बस कुछ टाइम के लिए पढ़ाने बैठ गए। ये रियलिटी है। ये आप ठीक कह रहे हैं। क्योंकि जो हमारी यूनिवर्सिटी में सिस्टम है, वो वी शुड इनकरेज इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। हार्वर्ड का एग्जांपल मैं आपको दूं कि हार्वर्ड में जब क्लासेस ख़त्म हो जाती थी तो नॉर्मली सोचते हैं भाई क्लास ख़त्म हो गई है, स्टूडेंट्स हैं, आपस में गपशप करेंगे, बियर पियेंगे। बट लेकिन शाम को वो बताते हैं कि आपको कैनेडी स्कूल में हिलरी क्लिंटन आ रही है स्पीच देने, और परफॉर्मिंग आर्ट स्टूडियो में मडोना आ रही है टॉक देने, और एक तीसरी यूनिवर्सिटी में इराक का ऑयल मिनिस्टर आ रहा है। अरे बाप रे। तो फिर आप सोचेंगे यार बियर तो फिर भी पी लेंगे, ये नहीं मिल पाएगा कभी। हाँ, और ये जो ऑप्शंस हैं ये रोज़ हैं। तो आप सोचिए कि अगर एक साल आप एक यूनिवर्सिटी में हैं तो और आपको रोज़ ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं, और जो प्रोफेसर्स भी आते हैं। मैं मसलन एक टॉक पे गया था, तो उसमें जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर नाई, जिन्होंने ये सॉफ्ट पावर वर्ड कॉइन किया था, वो बात कर रहे थे कि मैं पिछले हफ्ते जॉर्ज बुश सीनियर से डिनर पे था और उनसे मेरी ये बातें चल रही थी। तो दे आर रिप्रेजेंट द क्रीम। तो वो और उनका सिर्फ एकेडमिक दुनिया नहीं है, वो प्रैक्टिकल दुनिया में भी है। वो देखेंगे कि आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का कोई प्रोफेसर है, वो एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल का सीईओ बना है, फिर वापस आ गया हार्वर्ड। तो इस किस्म का जो इंटरेक्शन है विद आउटसाइड वर्ल्ड, वो बहुत कॉमन है। जो हमारे यहाँ तो रेयर ऑफ द रेयर होगा। हमारे यहाँ तो काफ़ी रेयर है, लेकिन होता है ऐसा कि कई लोग एकदम मल्टी बिलियनर नौकरियां छोड़ के वापस से पढ़ाई में आ जाते हैं, पढ़ाने आ जाते हैं। नहीं होता ना? ऐसा नहीं होता, लेकिन हो सकता है अगर हम जैसे आप कह रहे हैं टीचिंग सिर्फ एक नौकरी ना रह जाए, एक पैशन रहे। हाँ, पता नहीं वो फंडामेंटल पैराडाइम शिफ्ट कब आएगा, फंडामेंटल शिफ्ट कब आएगा? आ सकता है। मसलन कि अगर आप बीएड लीजिए तो बीएड को अगर हम चेंज कर दें उसके क्वालिफिकेशन सिस्टम, सो दैट ये नहीं कि आपने एग्ज़ाम पर पास कर लिया तो आप टीचर बन गए, आप में कुछ गुण होने चाहिए। तो सो गेटिंग गुड टीचर्स, गेटिंग दोज टीचर्स टू आल्सो डू रिसर्च, फिर एक मेरिटोक्रेटिक सिस्टम बनाना कि जो काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड भी मिले।
स्टूडेंट रिसर्च का ग्रांट भी तो नहीं मिलता, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। आधे आधे तो इसलिए सफ़र कर रहे हैं कि वो रिसर्च करना चाहते हैं लेकिन बजट नहीं है, ग्रांट नहीं मिलता, रिसर्च करे किस पे, सपोर्ट नहीं आता, गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं आता, इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट नहीं आता, वो भी क्या ही करें। यू आर राइट। इनफैक्ट इसमें एक तो रिकमेंडेशन यही है इस किताब में कि जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को करनी चाहिए एजुकेशन में। बहुत साल पहले एक रिपोर्ट आई थी कि भाई 2% इन प्राइमरी एजुकेशन, 2% इन कॉलेज एजुकेशन, 2% इन वोकेशनल एजुकेशन। तो हमारी जो भी कंपल्शंस हैं एंड दिस इज अक्रॉस द बोर्ड, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कोई और सरकार हो, कोई भी एजुकेशन को उतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहा। 6% तो आपने बहुत बड़ा यूटोपिया बता दिया। 6% बजट तो मुझे लग रहा है कब होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं है। बट आई गेस अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा एजुकेशन पे तो हम कभी ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड नहीं बना पाएंगे। मैं तो यही समझता हूँ कि अगर पॉजिटिवली देखें कि किसी तरह से प्रेशर पड़े और वो इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इस किताब में भी मैंने एग्जांपल दिया है। मैंने कहा लोग कहते हैं कि इंडिया में इतनी करप्शन है, अगर आप व्यापम स्कैम देखें और करप्शन स्कैम्स देखें, पेपर्स लीक हो गए, नीट अभी चल ही रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये बड़ी डिस्करेजिंग फिनोमेना है। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव स्पिन देखें तो अब मिडिल क्लास इतनी बढ़ गई है कि लोग ये टॉलरेट नहीं कर पा रहे कि उनके बच्चों का फ्यूचर ऐसे जेपरडाइज हो इस करप्शन के कारण। तो जुलूस निकलते हैं, लड़कियां उन जुलूसों में पार्टिसिपेट करते हैं कि ये चीटिंग नहीं चल पाएगी, ये करप्शन नहीं हो पाएगा। सो देयर इज अवेयरनेस इन सिविल सोसाइटी एंड अ लोअर टॉलरेंस। तो ये एक किस्म की पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एक किस्म का इनडायरेक्ट प्रेशर है कि आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा। एक सवाल उन सब लोगों का आ सकता है जो मतलब अभी 11th-12th में होंगे और शायद अब यूनिवर्सिटी में जाना चाहेंगे। क्या बहुत ज़्यादा नंबर, मतलब एकदम 95-99% आना ही ज़रूरी है हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में जाने के लिए? या अगर आप एक मीडियोकर हैं, 70-75% वाले हैं, 65-70% वाले हैं, 65-70-80% की रेंज में, तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं? सॉरी, एक्चुअली ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका में जो सिस्टम है वो ये है कि नंबर्स आर नॉट द ओनली थिंग। आपको वो देखते हैं, मसलन हो सकता है कि हमारे नंबर, हम दोनों स्टूडेंट्स हैं, आपके 95 हों और मेरे 75 हों, लेकिन हम हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं और हिस्ट्री का मुझे शौक़ हो, मैं हिस्ट्री की किताबें पढ़ता हूँ। आपके नंबर तो अच्छे हैं लेकिन आपको हिस्ट्री का शौक नहीं है, बस ये है कि आपको बस करना है इसलिए मैं जा रहा हूँ। हाँ, तो सिलेक्शन आपका होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस चीज़ को तवज्जो देते हैं कि एप्टीट्यूड क्या है, स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है, और वहाँ एक कमेटी बैठती है और वो मेजॉरिटी डिसीजन लेते हैं। तो इसका मैंने यहाँ डिस्कस भी किया है कि इवेंचुअली हमें ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ इतनी करप्शन हो गई है कि वो भी बिक जाए। हाँ, कि वो भी एक हो सकता है कि पेरेंट्स मे नॉट ट्रस्ट कि भाई ये इम्पार्शियल सिस्टम नहीं है, ये तो दिस इज इनडायरेक्ट वे ऑफ गेटिंग इन इनकॉम्पिटेंट पीपल, पुटिंग प्रेशर। तो सो वी कैन प्रॉब्ली नॉट फॉलो दैट सिस्टम राइट अवे, बट यू आर राइट कि सिर्फ वी शुड नॉट जस्ट बी फोकस्ड ऑन नंबर्स। एक ये भी एस्पेक्ट होता है ना कि पढ़ाई में सिर्फ पढ़ाई नहीं है, एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। स्कूल में अगर आप देखें, स्पोर्ट्स होता है, म्यूज़िक होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स होता है, को करिकुलर कई चीज़ें होती हैं। क्या हम ऐसे समाज की ओर बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई 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 है, या फिर आज हम थोड़ा बहुत भी फोकस दे रहे हैं बाकी चीज़ों को? एंड हाउ डू यू थिंक इट हैज़ चेंज्ड और इवॉल्व्ड ओवर ईयर्स, आपके टाइम से अभी तक में? मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट है, बिकॉज जब इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी कि आप और चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैं जब नॉटिंघम गया था तो मेरे से वहाँ के स्टूडेंट्स ने पूछा कि भाई व्हाट इज़ योर गेम। तो मैंने तो टेबल टेनिस खेलता था, बट मैंने सोचा और मैंने कहा कि भाई हमारे यहाँ पेरेंट्स का इतना फोकस होता है पढ़ाई में, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। तो अब ये सिनेमा भी आ रहा है कि जिसके बारे में अभी जैसे पिक्चर आई है कि वो
क्रिकेटर बनना चाहता है या थ्री इडियट्स विच रेजोनेटेड अ लॉट कि भाई आप अपना फोटोग्राफर बनना है तो फोटोग्राफर बन जाओ, फुटबॉलर बनना है फुटबॉलर बन जाओ, जो करना है वो करो। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें दोनों चीज़ों को इन माइंड रखना चाहिए। एक मैं जूइश मदर हु इज़ द मदर ऑफ अ वेरी फेमस आर्किटेक्ट, ओके, उसका इंटरव्यू देख रहा था। मैंने कहा मेरा बेटा जो है वो पेंटर बनना चाहता था। तो मैंने कहा भाई पेंटर में तो फ्यूचर है नहीं, और पर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि तुम आर्किटेक्ट बन जाओ, तो फिर तुम्हें क्रिएटिव एस्पेक्ट भी तुम्हारा सेटिस्फाई हो जाएगा। अब पैसे का पैसा भी है। हाँ, तो आई विल से कि थोड़ा सा दोनों चीज़ों को मतलब सिर्फ जुनून से काम नहीं चलता, पेट में रोटी भी चाहिए, तो थोड़ा बैलेंस बना के चलना है। क्योंकि माँ बाप भी, मैं अग्री करता हूँ कि माँ बाप भी गलत नहीं सोचते होंगे, वो भी यही सोचते होंगे चल भैया तेरा पैशन तो ठीक है, लेकिन कल की डेट में हम नहीं रहे या तू अकेला है, इंडिपेंडेंट है, कैसे होगा, इससे क्या बिल्स पे कर पाएगा। और कई प्रोफेशन, ये सैड रियलिटी है कि हमारे मिनिमम वेज नहीं है, तो कई प्रोफेशंस को पैसा ही नहीं मिलता वो। और हमारे यहाँ जिस हिसाब का ह्यूमन रिसोर्स सस्ता है, उस हिसाब से तो बिल्कुल आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। आज की डेट में कोई बोले मुझे पेंटर बनना है, उसको अपने आप को इस्टेब्लिश करने में कितने साल लग जाएंगे, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। और प्लस वो पैसा कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा ये भी किसी को नहीं पता। अब आप सोचिए पिकासो बन जाए रातों रात, तो वो तो नहीं हो सकता, और जब पिकासो बनेंगे तब तक उसकी उम्र कितनी होगी और क्या पैसा आएगा वो भी किसी को नहीं पता। तो अग्रीड, वो माँ बाप भी गलत नहीं है अपनी जगह पे कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए। व्हाट इज द मैसेज टू ऑल दोज पीपल हु रियली वांट टू मूव इनटू दीज यूनिवर्सिटीज, एंड कैसे इसको टैकल करना चाहिए? एंड मतलब उसके बाद मैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे आऊँगा कि कैसे इस चीज़ को, इस जर्नी को टैकल करना चाहिए। क्या उनको यही एस्पायर करना चाहिए बच्चों को कि सिर्फ भाई विदेश में ही जाओ पढ़ाई करो, या फिर इंडिया में भी कोई होप दिख रही है अच्छी पढ़ाई की? मेरे ख्याल इंडिया में होप दिख रही है। और इसका मेन मुख्य कारण ये है कि जो वेल्थ है, वेल्थ इज मूविंग टू एशिया। ओके, तो वेल्थ जब एक दफ़ा मूव करती है तो फिर एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा लेके आती है। हाँ, तो वो और अब जो इंटरनेशनल रैंकिंग देखें आप ओवर द पास्ट ईयर्स, अब THES जो रैंकिंग करती है वो एशिया की अलग रैंकिंग करती है। अच्छा, हाँ, तो धीरे धीरे वी आर मूविंग इनटू दैट कैटेगरी। एंड एड टेक के जो एप्लीकेशंस हैं इंडिया में, कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऐसे हैं कि फर्जन अगर आप फ्यूचरिस्टिकली अगर सोचें कि आपको ज्योग्राफी पढ़ानी है और ज्योग्राफी को एक ऐप के ज़रिए पढ़ाना है, तो अब मंगोलिया में उनको ज्योग्राफी इंटरेस्ट होगा, साउथ चाइना सी, डिफरेंट ज्योग्राफी। इंडिया में है इंडियन ओशन, अरेबियन सी, हिमालयाज। हाँ, हिमालयाज। ऑस्ट्रेलिया में कुछ और है। तो अगर ये आपको मॉडिफाई करना है to create tailor-made solutions for a global student audience, so India has more talents because to accomplish something like this, because we have been providing ये जो backroom services, this is just a different kind of an application. So and this new software technology also, India is a giant. So if we harness our potential, we can and we allow foreign universities to come, एक किस्म का क्रॉस फर्टिलाइजेशन शुरू करें। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल क्रॉस फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल दूं कि जब मैं कैनेडी स्कूल में पढ़ रहा था तो वहाँ से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के भी प्रोफेसर आ रहे थे। ओके, तो और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक हिस्टोरियन भी एम्प्लॉय किया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ बिजनेस। ओके, हाँ, तो ये सब चीज़ें, क्योंकि नॉलेज तो एक है, वो हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट यूनिट्स में, तो सो वी नीड सबका क्रॉस फ्यूजन हो रहा है, यहाँ से वहाँ से आ रहा है, सब अपना नॉलेज शेयरिंग हो रही है। तो सो आई फील वी हैव इंडिया में ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे यहाँ, ऐसा कहीं कुछ हो रहा हो? वेल, एक तो हमारी जो एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन दैट वी हैव टू बी केयरफुल कि एक्सपेंशन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट। IITs बहुत सारे बना दें और उनकी क्वालिटी कम चले जाए, या IIMs बहुत सारे बना दें और क्वालिटी कम जाए। तो टू कीप एन आई ऑन द क्वालिटी एंड डू द साइमल्टेनियस एक्सपेंशन। अब शायद दुबई में भी एक IIM बन रहा है, एक IIT
UAE में भी खुल रहा है। Okay. तो यहाँ के भी जो एक्सेलेंट इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक्सपैंड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंडियंस, अब आप देखें अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में इंडियंस की संख्या बहुत है, तो इंडिया में भी कुछ बात है। अब हमें उनको वो ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए, उनको वापस आना चाहिए। So I'm hoping that in time to come, economic growth is very important. Investment is very very important. अगर हमारे पास कोई अच्छी लीडरशिप मिले, मिस्टर मोदी ने भी बहुत कहा कि भाई इन्वेस्ट करना है एजुकेशन में, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो नई गवर्नमेंट आई है, इफ़ दे मेक दोज इन्वेस्टमेंट्स देन द स्काई इज़ द लिमिट, वी हैव अ ह्यूज पोटेंशियल। मेक सेंस। आपने किताब में एक जगह ये भी लिखा है कि अब एशिया सुपर पावर बनेगा और इंडिया मतलब हो सकता है उसके फोरफ्रंट में रहे। व्हाई डू यू थिंक सो? मतलब तो देखिए, अगर चाइना के साथ कंपेयर करें तो चाइना तो हमसे इकोनॉमिक टर्म्स में बहुत आगे है, लेकिन चाइना में आप पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा सकते क्योंकि आप हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकते। अब हिस्ट्री आप पढ़ाएंगे तो फिर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की हिस्ट्री आप क्या देंगे जिन्होंने इतने जेनोसाइड किया और इतना। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे तो आप कैसे पढ़ाएंगे कि डिक्टेटरशिप ही अच्छी चीज़ है? तो इन सब चीज़ों में, सोशल साइंसेज में तो इंडिया का एक नेचुरल लीड है, बिकॉज वी आर इन इकोनॉमिक टाइम्स, आफ्टर इकोनॉमिक टर्म्स चाइना है और हम हैं। हाँ, चाइना इज़ मच अहेड ऑफ अस, बट चाइना का जो सिस्टम है वो इट इज़ अ लॉट ऑफ इट इज़ एंटी एजुकेशन। It is inbuilt anti-education because education में you must have a freedom of thought. तो वहाँ पे तो यहाँ पे भी कुछ हद तक है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर कोई मिसाइल बनेगी तो मिसाइल को आप क्रिटिसाइज करेंगे, या जैसे कोविड वैक्सीन में किसी ने कहा कि भाई ये गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत है, उसको तो अरेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी वी डेफिनेटली नीड फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अगर वो नहीं है तो फिर आपकी एजुकेशन कैन नॉट फ्लावर। ट्रू, मेक सेंस। ऑन दैट नोट, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। बहुत मजा आया। थैंक यू, बहुत मजा आया। एंजॉयड बिकॉज काफी इन डेप्थ पर्सपेक्टिव पता चला, जो कि बहुत जरूरी है। एंड आई विल श्योरली कनेक्ट विद यू इन फ्यूचर एज वेल। अगर मुझे कभी भी कुछ पूछना हुआ, आई वुड लव टू होस्ट यू अगेन ऑन द पॉडकास्ट, बिकॉज अच्छा पर्सपेक्टिव मिलता है कई चीज़ों का लेके। एंड वेरी वेरी थैंक यू फॉर थैंक्स। आई एम सॉरी कि मैंने यूएन का ज्यादा शेयर नहीं किया, नहीं बिकॉज़ इसमें ज्यादा फोकस थी, नहीं, बट नेक्स्ट टाइम वी कैन कैच अप। आपने जितना बताया वो मोर देन सफिशिएंट था मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।